اس فتح کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ مسیح کی خدمت کا آخری ویک شروع ہوا ہفتے کے پہلے دن کے ساتھ، جب وہ بڑی فتح کے ساتھ بادشاہوں کی طرح شاہانہ انداز میں ستائش کی گونج میں، لوگوں کے نعروں کی گونج میں وہ یروشلم میں داخل ہوا۔ اور یہ ویک یروشلم میں لوگوں سے بھرا ہوتا تھا، کیونکہ عید فصح پر لوگ گرد و نواح سے خداوند کی عبادت کرنے کے لیے، عید منانے کے لیے آتے تھے۔ اس واقعہ کا تذکرہ یا ذکر چاروں اناجیل میں ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ پڑھتے ہیں، کچھ کبھی کبھی پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ضرور ہیں۔ یاد رکھیے یہ خدا کا کلام ہے، یہ ہمیں زندگی دے، اس کے بغیر یہ جو جلوس ہم نکال رہے تھے یہ بیکار ہے۔ یہی ہمیں آسمان پر لے کر جائے گا، یہی ہمیں وہ الفاظ دے دے گا جو ہمیں جرت سے بھر دیتے ہیں، یہی ہمیں وہ لباس دے دے گا جس کو پہن کر ہم نے برا کی شادی میں جانا۔ اس لیے خدا کے کلام کو ضرور آنر کریں، خدا کے کلام کو ضرور پڑھیں، خدا کے کلام پر دھیان رکھیں، اور خدا کے نام کو ہمیشہ عزت اور جلال دیتے رہیں۔ کلام مقدس میں سے آج ہم متی رسول کی انجیل اور اس کے 21 باب میں سے واقعہ پڑھیں گے، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے، اور بھائی یوشیا ہمارے لیے پڑھیں گے پہلی آیت سے 10 آیت تک، میتھیو چیپٹر 21 ورس 1 to 10۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے، تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بیچ دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل بڑھ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آمین۔ 3.5 سال کی خدمت، اور اس سارے ایریا میں خداوند یسوع مسیح اس ٹائم میں سب سے فیمس شخص تھا، اور ہر طرف اس کا تذکرہ تھا، ہر طرف اس کی بات ہوتی تھی، لوگ گھروں میں اس کی بات کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ اس عید میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے، اس سے 1 ویک پہلے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا ایک بہت بڑا کام، لازر
लाजर को 4 दिन के बाद उसने कब्र में से बुलाया और लाजर अपनी कब्र छोड़कर बाहर आ गया और लोग देख रहे थे, लोग उसे देखना चाहते थे। ये बात गिरदोनवा में हर तरफ फैल गई और यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब वहां पर आए तो हम देखते हैं कि एक गधी के बच्चे पर, और वो इसकी निशानी ये है कि मैं हलीम बादशाह हूं और मैं सबसे सुलह चाहता हूं और मैं सबको सलामती बख्शूं। मैं आज थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बात करना चाहता हूं भीड़ के ऊपर। हम भी आज एक भीड़ की सूरत में बाहर थे, लेकिन मैं ईमान रखता हूं हम वो वाली भीड़ नहीं थे जो एक वीक के बाद या 5 दिन के बाद कह रही थी से सलीम। वहां बहुत से लोग थे जो उस दिन डालियां पकड़े हुए और चादरें बिछा रहे थे, उसको वेलकम कर रहे थे, उसको कारपेट दे रहे थे। बादशाह जब भी आप देखते हैं कि आते हैं तो उनकी ऑनर होती है, उनके लिए कौन से कारपेट बिछा देते हैं? रेड कारपेट्स बिछा देते हैं। और ये बादशाहों का बादशाह है और उसने कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। क्रिटिकल सिचुएशन उस वक्त ये थी कि इस्राएल रोमियों के तसल्लुत में था और उनसे दुख उठा रहे थे और पेशनगोइयां भी थी कि मसीह हमें रोमियों से भी क्या देगा? नजात देगा। उस वक्त वो दुख में थे और वो सोच रहे थे कि मसीह इस वक्त इस स्टेज पर पहुंच चुका है, लोग उसके पीछे हैं और हम रोमियों से भी क्या पा सकते हैं? नजात पा सकते हैं। और इससे पहले, इस वाक़या से पहले यूहन्ना और याकूब की मां ने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए, एक को कहां बैठा रहा? एक को अपने दाहिने और बाएं। वो देख रहे थे, लोग अज्यूम कर रहे थे, लोग देख रहे थे कि शायद इस्राएल की बादशाही वापस आ रही है। और एक बड़ा क्राउड उसको शहर में लेकर जाना चाहता, उसको महल में लेकर जाना चाहता। उनके एक्सपेक्टेशंस थी कि ये हमें छुड़ाएगा, लेकिन यीशु मसीह उस जलूस में से सीधा किधर जाते हैं? हैकल के अंदर जाते हैं और हैकल को क्या करते हैं? साफ करते हैं। आज का पैगाम ये भी है कि अपनी हैकल को साफ करें। हालेलुया, हालेलुया। आज का पैगाम ये भी है क्लीन योर टेम्पल, अपनी हैकल को साफ करें। हैकल का मतलब क्या है? तुम रूहुल कुद्दस का मक़दस हो, तुम खुदा का टेम्पल, खुदा तुम में बसता है। और खुदा कैसी जगह पर बसता है? पाक जगह पर। तो क्लीन योरसेल्फ, क्लीन योर इनसाइड, क्लीन योर आउटसाइड। खुदा आपको अंदर और बाहर से भी साफ करता है। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने आप को क्या करें? साफ करें। और जब हम खुदावंद से कहते हैं कि हमें माफ कर, हमें पाक कर, तो वो हमें क्या करता है? पाक करता है। यशायाह की किताब उसके पहले चैप्टर में लिखा, आओ हम बाहम हुज्जत करें और हमारे गुनाह चाहे गिरबसी भी हों तो बर्फ की मानद सफेद हो जाए। जब हम खुदा की तरफ रजू लाते हैं, खुदा के पास आते हैं, तो हमारे गुनाह बर्फ की मानद सफेद धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने गुनाह के जोर को खत्म किया। हालेलुया, कह सकते हैं हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने मौत के खौफ से आजाद किया, उसने गुनाह के डंक को खत्म किया। और आज हम देखते हैं कि इस वाक़या में वो ज़करिया नबी की उस पेशगोई के मुताबिक गधे पर सवार होकर आता है। इससे पहले कि वो मसीह यहाँ पर गधे पर सवार हो, अपने शागिर्दों को भेजता है कि बैतफगे में जाओ और वहाँ पर आपको एक गधी मिलेगी जिसके साथ बच्चा, और उसे खोल के लाओ, और अगर कोई तुम पूछे तो कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है।
हालेलुया। कहिए खुदावन को इसकी जरूरत है, खुदावन को इसकी जरूरत है। और उसके मालिकों ने जरा भी उसके लिए कोई भी ढील हुज्जत नहीं पेश की, उन्होंने उसको दे दिया। और एक और बात कहना चाहता हूं, खुदा बंधे हुओं को आजाद करता है। आपकी जिंदगी में कहीं पर भी रुकावट है, कहीं पर भी बंधन है, खुदा आपको उन बंधनों से आजाद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा बंधनों को खोल देता है। खुदा उनकी तारीफ हो और उसकी शुक्रगुजारी। एक बड़ी भीड़ मसीह को वेलकम कर रही है। उनकी अपनी अपनी तौक़ुआत हैं, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। उसमें बहुत से लोग हैं जो उसको देख रहे हैं कि ये एक बड़ा नबी है, ये नासरत का नबी यीशु नासरी है। गलील का नबी, नासरत का नबी कौन है? यीशु। उसका बड़ी शोहरत थी। कोड़ी पाक साफ होते, अंधों को आंखें मिल जाती, लगड़े चलना शुरू कर देते, मफलूज अपनी चारपाइयां उठा लेते, तूफान रुक जाते और सब कुछ यीशु के नाम से होना शुरू हो जाता और जो कुछ वो कहता हो जाता। आमीन। और फिर 4 दिन के मुर्दा लाजर को उसने जिंदा किया। इससे पहले उसने बर्तमाई की आंखों को भी खोला, उसको आंखें उसने अता की। और बहुतों ने मसीह की सच्चाई को पाया था और वो उससे खुशामदीद कह रहे थे। और बहुत से ये भी चाहते थे कि हमें रूमियों से क्या करे, आज़ाद करे, हम पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएं और फिर से इस्राएल इस एरिया में क्या करे, बादशाही करे। एक बड़ी भीड़ और उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वही भीड़, उसमें से बहुत से जो इस दिन खजूर की डालियां पकड़े हुए हैं, जो चादरें डाल रहे हैं, जो होशाना के नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं सलीब दे। याद रखिए, दुनिया बहुत जल्दी बदल जाती है। जब आप किसी की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते तो लोग बदल जाते हैं। और मैं ईमान रखता हूं हम ये वाली भीड़, हालेलुया, हम ये वाली भीड़ है नहीं, हम ये भीड़ नहीं, हम एक और भीड़ है, हम एक और भीड़ है। आइए चलते हैं मुकाशवा 7 बाब। ये हम होने वाले हैं मसीह के बरकत से और उसके फजल से और उसकी मोहब्बत से और उसके रहम से। प्रकाशा 7 बाब उसकी 9 से 12 आयत तक कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और 4 जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदावंद को सिजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदावंद की हो, आमीन। मैं इंटरेस्टेड हूं कि हम इस भीड़ का हिस्सा हों। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि हम सब इस भीड़ का हिस्सा हों। याद रखिए,
दुनिया में सब कुछ पा लें, लेकिन अगर हम इस भीड़ का हिस्सा ना हुए तो सब कुछ खत्म। अगर हम इस भीड़ का हिस्सा ना हुए, आज मैं आपके दरमियान ये मनाती कर रहा हूं कि खुदा हमें ऑफर करता है, अपने तख्त के सामने वर्शिप करने का प्रिविलेज वो हमें देता है। और कलामे मुकद्दस हमें बताता है, यूहन्ना ने इस विजन को देखा है, एक बड़ी भीड़ हर कौम में से, हर कबीला में से, हर उम्मत में से और हर अहले ज़बान, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, गुरमुखी बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अरबी बोलने वाले, अबरानी बोलने वाले, डैनिश बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और जितनी भी लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, वो लोग बर्रे के तख्त के सामने होंगे। और वो होंगे जिनके जामे सफेद। हालेलुया। वो होंगे जिनके जामे क्या है? सफेद। आपके जामे सफेद नहीं? सफेद तो इस जमीन पर मौका है, नहीं सफेद तो इस जमीन पर मौका है। जब तक इस बदन के अंदर जान है, उस वक्त तक मौका है कि आप अपने जामों को क्या कर ले? सफेद कर ले, बर्रे के लहू से धोकर अपने आप को पाक कर। आपकी जो भी हालत है, आप जिस भी सिचुएशन में है, मैंने लास्ट संडे कहा, आप कुछ भी है, आप किसी भी सिचुएशन में है, आप बड़े गुनाहगार हैं, आपसे ऐसे गुनाह हुए जिसको आप समझते हैं कि जिसका कफारा नहीं हो सकता, लेकिन यीशु ने उसके लिए भी कीमत अदा की है और यीशु उसको भी धोने की कुदरत रखता है। वो आपको कबूल कर लेता है, आप कैसे भी हैं, आप कातिल हैं, आप जानी हैं, आप कोई भी, आप फ्रॉडेंट हैं, आपने बहुत कुछ किया है, आप करप्ट हैं, आपने दूसरों के दिल तोड़े हैं, आपने कब्जे किए हैं, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन मसीह इसी हालत में आपको कबूल कर लेता है। लेकिन वो इस हालत में आपको रहने नहीं देता, वो आपके जामे धोता जाता है और आपको बिल्कुल बदल कर कुछ और ही कर देता है। और लिखा है वो बदल कर कुछ और ही हो गए और वो हमें अपनी तरह कर लेता है। हम जैसे भी उसके पास आते हैं, हमसे कहते हैं, वो हमें कबूल कर लेता है। फिर हमें वो उस हालत में नहीं रहता, वो हमारा स्टेटस बदल देता है, वो हमारी वैल्यू बदल देता है, वो हमारी जिंदगी बदल देता है, वो हमारी सिमत बदल देता है, वो हमारी राहें बदल देता है। हमारी राहें जहन्नम की तरफ थी, वो हमारी राहों को आसमान की तरफ कर देता है, हमेशा की जिंदगी की तरफ कर देता है। एक और भीड़ और एक और जमायत मुकाशफा 19 बाब में, और इसकी 5 आयत से मैं पढ़ूंगा और फिर हम इसको खत्म करेंगे। और तख्त में से ही आवाज निकली कि उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमायत की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलिक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया है। और खास बात, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं।
یہ کلام ہاللویا، یہ کلام سچا ہے۔ آواز بڑی کم، یہ کلام سچا ہے، یہ کلام سچا ہے، یہ کلام سچا ہے، یہ کلام سچا ہے۔ یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس سے بڑی کوئی سچائی ہو نہیں سکتی۔ اس کی دلہن نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ تیار کر لیا۔ ہم اس پروسیس میں ہیں، ہم تیاری کے پروسیس میں ہیں۔ ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ، ہر ایک گھنٹہ جو ہم گزارتے ہیں، it's our process، یہ تیاری کا پروسیس ہے۔ اس کی دلہن نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ تیار کر۔ گریشر تیار ہے؟ ہاللویا، تیار ہے گریشر؟ کہاں جانے کے لیے تیار ہے؟ اس شادی کا حصہ بننے کے لیے تیار کریں۔ Prepare your life، اپنی زندگی پر غور کریں۔ اس جہاں میں، اس دنیا میں جس کا بہت جام ہے، جس کی بہت لذت ہے، جہاں سے کوئی جانا نہیں چاہتا، یہ زندگی چند روزہ اور ہم پردیسی اور مسافر، اور ہمارا ابدی گھر کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ اور ابدی گھر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کیجئے؟ تیار کیجئے۔ مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار، اور دلہن نے تیار کر لیا ہے۔ اس کو کیا ملا ہے؟ یہ اختیار ملا ہے کہ وہ کیا پہن لے؟ مہین کتانی۔ اور اس برہ کی شادی آ پہنچی، اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف اور مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے۔ کون سے کام؟ کون سے کام؟ راست بازی کے، کلام مقدس کے مطابق راست بازی۔ وہ راست بازی نے جیسی آپ ہی فٹ کی تھی تھے، ہمارے مطابق نہیں۔ کس کے مطابق؟ کلام مقدس کے مطابق راست بازی۔ ٹیک اٹ، یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے ہمارا، ہم اس پروسیس میں ہیں، ہم پاک ہو رہے ہیں، ہم سینٹیفائی ہو رہے ہیں، ہمیں مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار مل جائے گا، اور ہم برے کی شادی میں کیا بولیں گے؟ شریک ہو جائے گا۔ اس بھیڑ سے زیادہ جو اس دن چلا رہی تھی، آج کی بھیڑ سے زیادہ ہم اس جماعت اور سات باپ والی بھیڑ کا حصہ ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کتنے لوگ پسند کرتے ہیں یہ؟ کتنے لوگ پسند کرتے ہیں؟ Clean yourself. Clean yourself. Clean your temple. آج کا پیغام یسوع مسیح آزاد کرتا ہے۔ اپنی زندگی اسے دیں، اپنا دل اسے دیں، اپنی زندگی میں اسے بسائیں، اور وہ آپ کو ڈے بائی ڈے پاک کرتا جائے گا۔ ہاللویا، وہ ہمیں ٹرانسفارم کرتا جائے گا، وہ ہمیں بدلتا جائے گا، وہ ہمیں موت میں سے نکال کر زندگی کا حصہ بناتا جائے گا۔ آپ سب کو پام سنڈے مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت بخشے، اور خدا آپ کو اپنا زور بخشے، اور خدا آپ کو پاک کرتا جائے، صاف کرتا جائے، آپ کی زندگیاں بڑھتی جائیں، اور مسیح آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود رہے، اور آپ اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت بخشے۔